Hello students, today topic is calculus of variation. Calculus of variation. Okay. First of all, the word calculus. In calculus, we deal with the change in variables. If one variable is changed, suppose for example, ordinary calculus में अगर आप deal करेंगे, ordinary calculus, let f या y is a function of x. क्या होता है? Y is a function of x. And the curve we can draw for y of x. Let this is the curve y या function of x. It is the graph of the function. And using the calculus या application of derivatives, we can find the values या stationary points of the function for which the function has maximum or minimum value. So as we know that slope of tangent to any curve is given by dy by dx. So using that property, slope of tangent to the curve is given by dy by dx, yeah, it is f dash of x. If we put this equal to 0, slope of tangent is 0 means it is parallel to x-axis. So the points here, the slope to the tangent is parallel to x-axis, and here also tangent is parallel to x-axis. So this is dy by dx, change yeah, f dash x. If we put this tangent equal to 0, so we can find the corresponding value of x1, and this is, let's say, x2. These x1 and x2 are the values of x for which this function maximum or minimum. These are the application of derivatives we use to find maximum or minimum value of a function. And here we can find these are also called stationary points. तो यहाँ पे क्या है, x1 x2 या values of x हैं, जो value of x for which the function fx is maximum or minimum. Yeah, you can say stationary point of functions. Stationary points value of x जो है ये क्या आपकी stationary points of a function fx. You can find by using this differential equation dy by dx is equal to 0 या f dash x equal to 0. यहाँ पे आप values of the point या values of x find करते हैं for which the function is maximum or minimum. In calculus of variation, we used to find there, let us suppose 2 points in a plane. One is A, that is x1 y1, and another point B, that is x2 and y2. A number of functions can passing through it. Infinite number of curves can pass through these endpoints. One curve is this, another curve is the straight line, and this is the another curve, and this is the another curve. So infinite number of curves can pass through these two given points in plane A and B. A point is x1 y1 and B x2 y2. If we have to choose for which of the curves, yeah, for which of the function, the condition given, let's say here for example, for the curve between A and B, yeah, curves passing through A and B, these are the infinite number of curves. Which curve has shortest length? Which curve has length या जो आप बोल सकते हो distance shortest? So that curve is a straight line. So to find the maximum or minimum value of the function for which these functional होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फंक्शन होगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है. तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, फंक्शनल, और जहाँ पॉइंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन. तो यहाँ पे फंक्शन एक एडिशनल वर्ड यूज करेंगे हम इन सेम टू सेम थिंग्स के साथ.
पॉइंट की जगह आप फंक्शन यूज कर लेना, एंड फंक्शनल यूज करेंगे फंक्शन की बजाय। फंक्शनल होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, दीज आर नंबर ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो फंक्शन होगा दैट इज फंक्शनल, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस होंगी। y1 है वो वैल्यू ऑफ f(x) है, f at x1, ओके, f at x1 दैट इज y1, एंड y2 क्या है, f वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x2, ओके, एंड हेयर वी डिफाइन ए इंटीग्रल I that is function of x, I is function of x, function of fx, function of fx बोल सकते हो या function of y of x बोल सकते हो, that is given by the integration x1 to x2, x1 to x2, limits from x1 to x2, f is the function of x1, x, y and derivatives into dx. दिस इज नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, या इसको बोलेंगे फंक्शनल, फंक्शनल। तो ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शंस है, ये किस कर्व के लिए, द गिवन कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल या स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शनल फाइंड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज करते हैं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड हियर, दिस f वी हैव टू फाइंड दिस f फंक्शन फॉर विच दिस फंक्शनल इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे f(x) फॉर विच द फंक्शनल क्या हो जाएगा, फंक्शनल इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे एडिशनल लेयर लगा देंगे हम फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फाइंड करेंगे, फंक्शन दैट फंक्शन इज f ऑफ x y y डैश, f ऑफ x y और y डैश ऑफ फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ए नंबर ऑफ कर्व्स, या फंक्शन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस इज नोन एज फंक्शनल, and for which the function is maximum or minimum. For example, number of functions passing a curves passing through A and B, for which curve the length between a distance between these 2 points is shortest, तो that curve is straight line। वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं by using calculus of variation, ओके। या आप बोल सकते हो स्टेशनरी फंक्शन, आपको स्टेशनरी फंक्शन फाइंड करना है of a functional, या for which function the I of fx या functional is maximum or minimum. Limitation of this calculus of variation is this: we have find the stationary value of the function, but we cannot cannot tell the function is maximum or minimum. Here we can use second derivative in this case. Second derivative less than 0, if it is less than 0 the function is maximum, if greater than 0 at that point then the function has the minimum value. But using calculus of variation we only tell about stationary function, it is either maximum or minimum. The nature of the stationary point, stationary function we cannot tell using calculus of variation. Now in this differential equation this is used, and to drive the maximum stationary function we use calculus of variation, and there is another differential form we use that is known as Euler-Lagrange equation. And Euler-Lagrange equation for this functional it will be curly f by curly y minus d by dx of curly f by curly y dash is equals to 0. This is Euler's equation. Using this equation we can find the curve for which this functional is maximum or minimum, या स्टेशनरी फंक्शन को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके फाइंड करेंगे। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल इज मैक्सिमम और मिनिमम। So for that we use this condition and find the results, that is known as Euler equation.
फॉर दिस क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम इसको यूज करके दिखाते हैं, फाइंड करेंगे कि दैट इज स्ट्रेट लाइन। एंड दिस इक्वेशन हैज, इसको ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस इक्वेशन को। अभी इसका यूज करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। देखो this is point, let's say a x1 y1 and this point b x2 y2, a number of functions या curves passing through a and b, this curve, this is the straight line curve, this curve, and for finding the shortest distance we use the displacement vector find करेंगे हम यहाँ पे। let's say displacement vector is ds for this curve ds फाइंड करेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप फाइंड करते हो दैट इज ds, तो दैट ds इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दैट वैल्यू इज dy एंड दिस इज dx। तो आप जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ से आप लिख सकते हो ds दैट इज dxi dy ऑफ j। तो यहाँ से आपकी जो आर्क आएगी दैट इज ds स्क्वायर करके ऐड कर दो, या सिंपल पाइथागोरस से भी यूज कर सकते हो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर दी रूट। यहाँ से ds की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो dx स्क्वायर से कॉमन ले लिया थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा dy बाय dx होल स्क्वायर अंडर दी रूट, और dx यहाँ से बाहर ले दिया। ओके, dx स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा dx। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। ओके, आर्क लेंथ आइए, आपको टोटल लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए इन ए और बी के बीच में, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x1 टू x2। तो यहाँ से आपका फंक्शनल तैयार हो जाएगा। इफ़ वी इंटीग्रेट दिस आर्क लेंथ देन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, दैट इज डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो इंटीग्रल आ जाएगा आपका i दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस इज इक्वल्स टू x1 टू x2। फंक्शन क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx, मीन्स इसको आप y डैश से भी लिख सकते हो, इनटू आ जाएगा यहाँ पे dx। ओके, 1 प्लस वाई डैश इंटू ये आ गया dx। ओके, तो दिस इज द फंक्शनल हेयर, ये क्या आपका फंक्शनल है। आप फॉर विच कर्व दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे यूजिंग आयलर इक्वेशन। तो आयलर इक्वेशन आप यहाँ से अप्लाई करो, ये आपका क्या आ गया फंक्शन है। इस फंक्शन को आप f ऑफ x y dy बाई dx, तो यहाँ से आप इसको यूज़ करेंगे। f यहाँ से आपकी चॉइस आ गई है f x y और y डैश दैट हैज़ द वैल्यू 1 प्लस y डैश अंडर द रूट। ओके, तो यूजिंग आयलर इक्वेशन इज करली f बाय करली y माइनस d बाय dx ऑफ करली f बाय करली y डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे, f y से इंडिपेंडेंट है, दिस टर्म इज 0, ये बचेगा आपके पास d बाय dx ऑफ करली f बाय करली y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर 0 है तो दिस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, करली f बाय करली y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट। तो आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इफ़ द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y देन वी कैन डायरेक्ट अप्लाई करली f बाय करली y डैश, ये स्पेशल केस करके करली f बाय करली y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप यहाँ से इस कंडीशन को अप्लाई करो। तो यहाँ से आपका करली f बाय करली y डैश, f क्या था 1 प्लस y डैश स्क्वायर अंडर दी रूट। ओके, 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होता है ना, ये था वाई डैश स्क्वेयर अंडर दी रूट। ओके, अब आपको चाहिए करली एफ बाय करली वाई डैश, करली एफ बाय करली वाई ऑफ डैश। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय रूट वाला होगा 1/2 रूट एज इट इज़ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इनटू रूट के अंदर है जो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, पावर आगे आएगी 2, वाई डैश एक पावर कम होके 2 में से बन गया 1 पावर, और वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश क्या होगा 1। ओके, ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट, लेट्स इट इज इक्वल टू सी। फ्रॉम हियर वाई डैश बाय 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, स्क्वेयर ले लेंगे दोनों तरफ, रूट कैंसिल हो गए यहाँ से, सी स्क्वेयर, इसको इधर लेके आएंगे वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू वाई डैश स्क्वेयर, ये इधर ले आओ। ओके, ये यहाँ से आ जाएगा वाई डैश स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, वाई डैश स्क्वेयर कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप देख सकते हो वाई डैश स्क्वेयर हैज़ द वैल्यू सी स्क्वेयर बाय 1 माइनस सी स्क्वेयर, लेट इट इज इक्वल्स टू एम। ये अनदर कांस्टेंट हो गया, इसको हमने एम लिख दिया। यहाँ से आ गया, या इसका भी रूट ले लो दोनों तरफ, ओके, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं अनदर कांस्टेंट एम, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई डैश इज डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम हेयर डी वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू डी एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया एम ऑफ एक्स और प्लस सी। ये क्या है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप और इंटरसेप्ट, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज इट्स y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, फॉर गिवन कर्व्स विच फॉर विच कर्व द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज शॉर्टेस्ट, तो दैट कर्व इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूजिंग द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन या आयलर इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं दैट पाथ फॉर विच टाइम इज़ मिनिमम। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है टाइम इज़ मिनिमम, एंड देयर इज़ अनदर क्वेश्चन आल्सो, इफ़ फॉर नंबर ऑफ कर्व्स देयर, इफ़ वी रोटेट दीज कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराएं तो क्या होता है, दे कवर ए सरफेस फॉर विच कर्व द सरफेस area is maximum or minimum, that can be also find using this calculus। ठीक है, उसके लिए हम इसकी डिफरेंट फॉर्म और यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से आप डिफरेंट फॉर्म भी ड्राइव कर सकते हो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, पुट कर दो ये y1 इक्वल्स टू एम x1 प्लस सी। अगर दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे जो एंड पॉइंट्स में, तो यहाँ से आ जाएगा y2 इज इक्वल टू एम x2 प्लस सी। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1। तो यहाँ से m आ जाएगा स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है फॉर्मूला गिवन 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। दूसरा, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके भी रिजल्ट देख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y, या दूसरा पॉइंट फॉर्म से आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, अब की बार 1 पॉइंट फॉर्म जो है लाइन की वो भी ड्राइव कर सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1, और m आपने फाइंड कर लिया दैट इज y2 माइनस y1 बाय, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट गिवन हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर x1 y1, और स्लोप ऑफ लाइन इज वी कैन फाइंड y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। पुट कर देंगे यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। जनरल इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके आप 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
तो क्या हुआ, गिवन नंबर ऑफ कर्व्स में से द कर्व्स पासिंग थ्रू ए एंड बी आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स फ्रॉम विच फॉर विच कर्व the length between these 2 points is minimum that can be found using calculus of variation. In calculus of variation, to solve the problems we use Euler-Lagrange equation. Further different forms of this also. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन को ड्राइव भी करेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन होती है कोई भी फंक्शनल को स्टेशनरी फंक्शंस फाइंड करने के लिए। स्टेशनरी फंक्शन फॉर विच फंक्शन द फंक्शनल आई या इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म इज मैक्सिमम और मिनिमम, वी यूज दिस इक्वेशन। दिस इज नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डिनरी कैलकुलस dy बाई dx से हम इसको फाइंड करते हैं। अब आप इसके अनदर फॉर्म्स को भी डील कर सकते हो। वन फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन इज, आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन इज df बाई dy करली f बाई करली y माइनस d बाय dx ऑफ करली f बाय करली y डैश इक्वल्स टू 0. Okay, as we have taken in this functional I y of x या f of x equals to x1 to x2 f of x y and y dash into dx, इस फॉर्म में आपको फंक्शनल मिलेगा। तो इस फंक्शनल के अंदर अगर आप f को देखोगे तो इट इज़ फंक्शन ऑफ x y एंड y डैश। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, टोटल डेरिवेटिव को यूज़ कर सकते हो, d ऑफ f निकाल सकते हो, d ऑफ f दैट हैज़ द वैल्यू करली f बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली f बाय करली y इंटू डी वाई प्लस करली f बाय करली y डैश इंटू y डैश इंटू डी ऑफ वाई डैश। अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें, डी एफ बाई डी एक्स निकालें, तो यहाँ पे क्या होगा, हर वैल्यू के अंदर डी एक्स आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके, ये आ गया डी एक्स। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से आपका आ गया डी एफ बाई डी एक्स माइन इक्वल्स टू दैट इज 1, ये आ गया करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली f बाई करली y इंटू वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश से लिख लेते हैं, प्लस करली f बाई करली y डैश इंटू ये हो गया y डबल डैश डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है d ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या y डबल डैश। ओके, तो ये y डबल डैश। आल्सो आप फाइंड करो d बाय डी एक्स ऑफ या d बाय डी वाई ऑफ, d बाय डी एक्स ऑफ फाइंड करो d बाय डी एक्स ऑफ y डैश करली f बाय करली y डैश, ये निकालो। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, एक बार ये एज इट इज़ क्या होगा, ये एज इट इज़ यू विल अप्लाई करेंगे y डैश एज इट इज़। ओके, और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ करली f बाई करली y डैश, ओके, प्लस y डबल डैश, ये हो जाएगा करली f बाई करली y डैश। ओके, इसका विद रिस्पेक्ट टू x ये फंक्शन हमने एक क्रिएट किया y डैश करली f बाई करली y डैश, तो इसका डेरिवेटिव होगा y डैश एज इट इज़ यूवी रूल से d बाई डी एक्स ऑफ करली f बाई करली y डैश प्लस y डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और करली f बाई करली y डैश। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 के अंदर से 2 को सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश करली एफ बाय करली वाई डैश आ जाएगा, ये इक्वल होगा करली एफ बाय करली एक्स, ओके, करली एफ बाय करली एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई इंटू वाई डैश। ओके, ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये साथ में आएगा माइनस ये वाई डैश डी बाय
dx of curly f by curly y dash. Okay, from here you can y dash take common from this factor, ये बचेगा curly f by curly y माइनस d बाय डी एक्स ऑफ करली f by करली y डैश. ठीक है, आप क्या देख रहे हो, करली f by करली y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f by करली y डैश. ये क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन आपको पता होगी, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन. यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक होती इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ से 0 करेंगे, ये टर्म भी आपकी टोटल टर्म ये 0 हो जाएगी. तो क्या बचेगी, केवल ये अनदर फॉर्म आ जाएगी. तो अनदर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज दिस, अनदर फॉर्म आप ये भी यूज कर सकते हो और d बाई डी एक्स दोनों में कॉमन भी ले सकते हो. तो यहाँ से अनदर फॉर्म ऑफ आयलर्स लैग्रेंज इक्वेशन क्या आ जाएगी, d बाय डी एक्स ऑफ f माइनस वाई डैश करली f बाय करली y डैश, y डैश माइनस y डैश माइनस सॉरी f माइनस y डैश करली f बाय करली y डैश इक्वल्स टू करली f बाय करली x. दिस इज अनदर फॉर्म. ओके, इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर f है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x पे डिपेंड ना करें, तो दिस फॉर्म फर्दर रिड्यूस. तो करली f बाय करली x क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ से किसका स्पेशल केस बन जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और किसी का डेरिवेटिव 0 इसका मतलब इसको कांस्टेंट रख देंगे. तो फॉर दैट f माइनस वाई डैश करली f बाय करली y डैश इक्वल्स टू क्या रख देंगे, कांस्टेंट. ये कंडीशन यूज करेंगे अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट है किससे, x से, तो आप डायरेक्ट इस आयलर लैग्रेंज इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो. f माइनस वाई डैश करली f बाय करली y डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट. जनरल केसेस में ये अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y मिले तो सिंपल आप ये भी देखो, एक फॉर्म आ गई थी यहाँ से, y से भी इंडिपेंडेंट हो f और x से भी इंडिपेंडेंट हो, तो करली f बाय करली y डैश को क्या कर दिया था, कांस्टेंट, आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करने में यूज की थी. तो वो उसके स्पेशल केस हो जाते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे. एक और फॉर्म होती है इसकी, थर्ड फॉर्म भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो. तो आपने इसकी 2 फॉर्म पढ़ी हैं और उनके स्पेशल केस भी देख लिए हैं. क्या थी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है करली f बाय करली y माइनस d बाय डी एक्स ऑफ करली f बाय करली y डैश इक्वल्स टू 0. अगर यहाँ पे स्पेशल केस क्या यूज था, अगर f है इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो, y हो और x हो, ठीक है, y से ही निकाल देंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ y हो, तो उस केस में क्या आ गया था, ये टर्म 0 हो जाएगा. करली f बाय करली y को क्या कर दिया था, 0. यहाँ से हमने देखा था d बाय डी एक्स ऑफ करली f बाय करली y डैश क्या हो गया, 0, और ये 0 कब होगा, करली f बाय करली y डैश को आप सीधा कांस्टेंट रख सकते हो. ओके, ये यूज हो जाएगा. अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, करली f बाय करली y डैश इक्वल टू कांस्टेंट. अगर आपका फंक्शन, दूसरी फॉर्म फिर ड्राइव की थी हमने, दूसरी फॉर्म आई थी d बाय डी एक्स ऑफ, सेकेंड फॉर्म d बाय डी एक्स ऑफ f माइनस वाई डैश करली f बाय करली y डैश, ये आया था, और ये इक्वल्स टू क्या था, करली f बाय करली x था. ओके, अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, केवल x से इंडिपेंडेंट हो, इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन करली f बाय करली x को क्या कर दिया था, 0. तो ये जो डेरिवेटिव है ये भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ से आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ f माइनस वाई डैश करली f बाय करली y डैश इक्वल टू 0. और ये 0 कब होगा, जब f माइनस वाई डैश
करली एफ वाई करली वाई डैश इक्वल्स टू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें इस इक्वेशन का यूज करोगे आप डायरेक्ट। जैसे गिवन टू पॉइंट्स के बीच में जैसे a और b से इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस पास होते हैं, कर्व्स पास होते हैं, दैट कर्व वन कर्व अनदर कर्व इज स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, दिस कर्व हो सकता है, ठीक है, a और b से जो पास करे, एंड अनदर कर्व इज लाइक दिस, ओके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स दैट आर पासिंग थ्रू दिस a एंड b, b इज x2 y2, इन प्लेन है तो x1 और y1। तो क्या होगा अगर हम इस कर्व को यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x1 एंड दिस हैज़ x2, x एक्सिस इट इज़ y एक्सिस फंक्शन, ओके। तो अगर हम इन कर्व्स को x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं, जैसे इस कर्व को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये कर्व ऐसे रोटेट करेगा तो एक शेप फॉर्म करेगा, सरफेस बनाएगा, उस सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। दूसरा स्ट्रेट लाइन है, उसको अगर आप ऐसे इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे रोटेट कराओ अबाउट एक्स एक्सिस तो एक शेप बनेगी, ठीक है, फ्रस्टम लाइक शेप बनेगी, ठीक है। ऐसे इसको अगर रोटेट कराएं इस एक्सिस के अबाउट, इस कर्व को ऐसे रोटेट कराएं एक शेप बनेगी। तो इन गिवन शेप्स में से कौन सी सरफेस ऐसी होगी जो इन दो पॉइंट से, कौन सा कर्व ऐसा होगा जिसके लिए जो सरफेस एरिया जो कवर करेगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस से, वो एरिया क्या हो, मैक्सिमम और मिनिमम हो। उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आयलर इक्वेशंस को यूज करके। तो पहले हमें वो एरिया फाइंड करना होगा। लेट्स सपोज दिस इज द कर्व फॉर विच एरिया इज बाउंडेड। यहाँ से अगर इसको रोटेट कराएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, एक शेप बनेगी, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ये रोटेट करेगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा। आप क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक शेप कट कर ले इसमें से, y क्या है इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, और dx क्या है इसकी थिकनेस होगी। तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, या सॉरी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए। पेरीमीटर क्या हुआ, दैट इज सर्कुलर। अगर हम इसमें से एक छोटा पोर्शन किसी भी कर्व से कट कर लो ऑफ dx लेंथ के लिए, तो उस ds लेंथ के लिए बोलो, बल्कि आर्क लेंथ ds के लिए, ds आर्क लेंथ के लिए आप एक स्ट्रिप कट करो, वो स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ठीक है। और सर्कुलर की लेट्स से इट्स रेडियस इज y फॉर एनी कर्व के लिए y, देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई y। अगर हम इस आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा स्ट्रिप का। स्ट्रिप की अगर हमें टोटल लेंथ मिल गई, इसको अगर आप कट करके ओपन करोगे, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 2 पाई y, और इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ ds, तो ये होता है एरिया बाय दिस स्ट्रिप, एरिया जो होगा इस स्ट्रिप के लिए। और अगर उस एरिया को हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम x1 टू x2, तो आपका एरिया जो एरिया कवर्ड बाय दिस सरफेस आ जाएगा। तो एरिया कवर्ड बाय ए सरफेस कोई भी सरफेस के लिए आर्बिट्ररी के लिए हमने ली है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y रेडियस की एक स्ट्रिप कट करते हैं हैविंग आर्क लेंथ ds। अगर आप उस आर्क लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो इस आर्क लेंथ से, सॉरी इस सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे ds से, तो एरिया जो इस रेडियस ने डेवलप किया है, कवर किया है, वो फाइंड हो जाएगा। और उस एरिया को दैट एरिया इंटीग्रेट कर दो x1 से x2, तो आपका टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस सरफेस बाय रिवॉल्विंग अबाउट x एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करने से जो टोटल एरिया होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। क्या फार्मूला होगा, सरकमफेरेंस होगी 2 पाई y और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये ds। इसको इंटीग्रेट कर दो x1 से x2 तक, तो एरिया आ जाएगा एरिया कवर्ड, ठीक है। और अगर ये एरिया कवर्ड किस सरफेस, ये आपका बन गया क्या, फंक्शनल। इस फंक्शनल के लिए किस फंक्शन के लिए या किस कर्व के लिए दैट एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम अगर फाइंड करना है, तो वो आपका
क्या यूज़ करके आयलर इक्वेशंस आप अप्लाई करो वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 पाई तो क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x1 से x2 तक रहेगा y इंटू डी एस। डी एस आर्क लेंथ आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, अभी पहले भी निकाली थी। डी एस वैक्टर को आप लिख सकते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस प्लस डी वाई इंटू जे। ओके, यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो दैट इज डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर अंडर दी रूट, डी एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, ओके, इनटू ये डी एक्स बाहर वाला ये लिख दिया साथ में। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। तो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश ऑफ स्केयर से लिख दो, इनटू क्या आ गया डी एक्स। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा जिसको आपको फॉर विच मैक्सिमम मिनिमम आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये एफ हो गया आपका। इस एफ को लैग्रेंज इक्वेशन में पुट करो, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन में आपका वो आ जाएगा, करो किसके लिए ये एरिया मैक्सिमम होगा जो ये कवर करेगा अबाउट रोटेशन से। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सेफ आप फाइंड कर सकते हो, करो कैसा होगा। तो इसको ये आपका फंक्शनल होगा, यहाँ से 2 पाई साथ में रख लेना। तो फंक्शनल आपका आ गया एफ दैट हैज़ द वैल्यू y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश। ये आपका फंक्शनल है एफ इंटू डी एक्स होता है फंक्शनल में, कॉन्स्टेंट कोई फर्क नहीं डालेगा। तो यहाँ पे आपका f आ गया y इंटू 1 प्लस वाई डैश। तो आप क्या देख रहे हो, जो y है f है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, x है, f है उसमें x नहीं है ना, तो इसलिए आप ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट f माइनस वाई डैश इंटू डी एफ वाई करली एफ वाई करली वाई डैश। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में अगर इसका वाई डैश इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश है, तो वाई क्या रहेगा एज इट इज, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस ऑफ वाई डैश एज इट इज, और वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे दैट इज 1। ओके, एफ माइनस वाई डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस 1/2 रूट एज इट इज, और रूट के अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो वो क्या होगा 1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वल टू क्या रख देंगे भाई, कांस्टेंट, और लेट्स द कांस्टेंट इज सी, और f की वैल्यू क्या है आपकी y माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश, ये बन जाएगा y इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई और वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दिस। यहाँ से भी y आप कॉमन ले सकते हो, y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई डैश माइनस क्या बचेगा वाई डैश। देखो y दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई डैश माइनस क्या है वाई डैश बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश, सॉरी यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर था सर, क्या है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा, साथ में आएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश, 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश भी आएगा साथ में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एफ माइनस वाई डैश और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ओके, सही है, ये आ गया एलसीएम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश स्क्वायर आएगा यहाँ पे एलसीएम में, और ये जो टर्म हो जाएगी यहाँ पे भी वाई डैश क्या है स्क्वायर है, तो y इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होगा, माइनस क्या आएगा वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये रूट में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से y को कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, नीचे वाई डैश स्क्वायर बचेगा भाई, इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया आपका y बाय 2 है ही नहीं क्योंकि 2 कैंसिल हो गया था, 2 भी यहाँ से रिमूव करो, तो यहाँ से आ गया y बाय स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, ये आ जाएगा y ऑफ स्क्वायर, नीचे होगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर करके।
ओके, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्केयर प्लस सी स्केयर वाई डैश स्केयर इज इक्वल्स टू वाई स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर। ओके, यहाँ से आप इसको इधर ले जाओ या सी स्केयर को उधर ले जाओ तो ये आएगा सी स्केयर वाई डैश स्केयर इज इक्वल्स टू वाई स्केयर माइनस सी स्केयर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर आ गया, सी स्केयर वाई डैश स्केयर की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्केयर माइनस क्या हो जाएगी सी स्केयर, और अगर वाई डैश स्केयर की वैल्यू चाहिए तो वाई स्केयर माइनस सी स्केयर बाय सी स्केयर, और वाई डैश अगर चाहिए तो अंडर दी रूट हो जाएगी ये वैल्यू। ओके, यहाँ से ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्केयर माइनस सी स्केयर बाय सी स्केयर का रूट तो सी हो जाएगा, ये बच गया। ओके, तो यहाँ से डी वाई बाय रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल्स टू डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और ये सी एज इट इज़ प्लस सम कांस्टेंट लेट इट इज़ बी। ओके, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे बच जाएगा। ये आ गया डी वाई बाई वाई स्केयर माइनस सी स्केयर। आपको फॉर्मूला पता होगा, डी एक्स बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए होते हैं। अगर डी एक्स बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर दी रूट हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, ठीक है, एक्स बाय ए। तो यहाँ से जो यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y बाय सी इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी प्लस बी, और यहाँ से इसको इधर लेंगे y बाय सी इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी प्लस बी, तो y इज इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी प्लस बी। ओके, तो ये आपका कर्व होगा जिसके लिए जो सरफेस एरिया उस कर्व को रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी मिनिमम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।